We hope that you reach more and more successes, and we see you, in an upcoming movie, most probably. I also am hoping. Yeah. I'm really, really glad to be here. This looks like a great exhibition, and I have been to a lot of exhibitions before, but this has a very cozy feel to it. And yes, I can see already a lot of stuff, and all of them look nice. They look really, really nice, and I'm here for Urusa, and she's been my friend for, I think, a very long time. Yes, we have been friends for a long time, and thank you, Urusa, for having me over, and I hope I enjoy the exhibition to the fullest today. For sure. Thank you so much, Akansha, for being here just at the call of, just giving you a call at the right moment and agreeing. Such a sporting lady right here. I know her since a very long time now, and we used to work out together, and now we are here doing professional things and reaching great heights. And I wish and I hope that we continue this journey together, and may we reach many more milestones like this. I also want to wish all of you, like Urusa said, that I might reach heights. I want all of us to reach heights. So all the best to all of you, and have a great, great time. It's more of like 2 days of bonding, and also obviously we are all here for commercial purpose. But yes, it's also about bonding and doing our own little PR and everything. So once again, a huge round of applause for the entire team of Midnight Madness. Everyone who's taken that time and put up each and every stall. The collection is amazing. We have tried this time to, get out more and more different kinds of thing, and not just concentrating on one particular type. So we have from, electronic hair appliances to jewelry, to silver jewelry, and then we have children and a lot of, appetizers, and the food, of course, is great. So please, take a look and enjoy the show. And now we will definitely, ask our media people to come on board and ask their questions and their queries to all of us. Thank you. आकांक्षा, यहाँ पे वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, राइट? जी। सो वैलेंटाइंस वीक में यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए। जी, वैलेंटाइंस वीक पे तो गिफ्ट खरीदनी होती है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आई एम श्योर यहाँ पे जो भी लोग आएंगे बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदेंगे अपने ऑब्वियसली स्पाउसेस। इनफैक्ट आई बिलीव इट्स अ डे ऑफ लव, तो सबके लिए होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट योर बेटर हाफ्स ओनली। सो मैंने तो अपनी बेटी को भी गिफ्ट किया है, सो दैट्स हाउ इट शुड बी। इट्स अ डे ऑफ लव। सो आई एम श्योर यहाँ पे सभी एजेस और सभी तरीके के चीज़ें हैं टू गिफ्ट। सो आई एम फीलिंग रियली नाइस, एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट। मैम, आज के टाइम पे आपको कैसा लग रहा है? वुमेन को आप क्या ये मैसेज देना चाहेंगे इंस्पिरेशन के लिए? आप बताएं अपनी तरफ से। एज एन इंस्पिरेशन आई जस्ट बिलीव कि जो आप जो बिलीव करते हो उसी को मान के आगे बढ़ो, क्योंकि that is your gut, that is your intuition, and that is never wrong. So that should be your own gut, your own you should be your own inspiration and your own motivation to rise in life. उरुषा जी, जिस तरीके से प्रोग्राम करवा रही है, मुसलसल कई दिनों से देखा जा रहा है, कई मंथ से, सालों से ही देखा जा रहा है कि हर जगह पर प्रोग्राम करा रही है। एक तरीके से खास तौर पर वुमेन्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, लोगों को अपना हुनर दिखाने का। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे उरुषा जी के बारे में? I have seen Urusa when we used to work out together. वो same gym में, मतलब she was very serious about her blogging and everything. तब से मैंने उसके साथ मैंने देखा she is very inclined towards fashion. तो मैं हमेशा जानती थी कि ये कुछ ना कुछ अच्छा फैशन को लेके करेगी, और आज वो कर रही है, and I'm very very proud of her, and I'm proud to be her friend as well. मैम, फैशन से रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे आप अभी के जनरेशन्स के लिए, और जो घर में हो हाउस वाइफ है तमाम, उनको क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? You just have to be comfortable in your skin. बस your size does not matter. Nowadays body shaming is like a past. It's a past. So if you feel you are comfortable, आपको अच्छा लग रहा है, पहनो,
बस दैट्स इनफ. पीपल यूज्ड टू ट्रोल फॉर द कलर एंड ऑल. वो भी अब नहीं होना चाहिए. इनफैक्ट आई हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट स्पीकर्स फॉर plus size women, all kinds of, all sizes of women, whether it's lean, whether it is plus, whether it is dark. In fact, I like the color dusky. So I have been one of the biggest speakers of all kinds of women, appreciating beauty in all sizes and colors. मैम यंगर वुमेन को क्या करेंगे जो अभी रिसेंटली मम्मी हुई हैं, उनको किस तरीके से आप इंस्पायर करना चाहेंगी? यंगर women, I don't think so. आजकल किसी को भी इंस्पिरेशन की ज़रूरत है. हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग को कैसे दिखना है, कैसे हम लोग कॉन्फिडेंट फील करेंगे, तो वो खुद ही इंस्पिरेशन बन जाती. मैंने जैसे बोला, इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम विद इन यू. सो अगर उनका वेट they've gone up on their weight, वो अपने जब तक अपने से अंदर से नहीं होता है तब तक वो शिकन भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे. तो पहले तो अपने अंदर वो जो आवाज़ है उसको सुनो, और अगर आपको लगता है कि आपको वजन कम करने की ज़रूरत नहीं है तो आप छोड़ दो. मैम आपको किसने इंस्पायर किया मैम मिसेस वर्ल्ड वाइड ईस्ट होने के लिए? आप अभी हैं तो आपको किसने इंस्पायर किया इस प्रोफेशन में आने के लिए? जी मैं ऑलरेडी आई वाज मॉडलिंग व्हेन आई वाज इन कॉलेज. तो बिकॉज ऑफ माय कंजर्वेटिव बैकग्राउंड आई स्टॉप्ड मॉडलिंग एंड आई गॉट मैरिड. उसके बाद लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस हैपेंड, बहुत सारी चीज़ें की, बट आई न्यू दिस वाज माय कॉलिंग समवेयर. सो इसके लिए इंस्पिरेशन की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी. मैंने समझ गई थी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कि यही मेरा कॉलिंग है, इसलिए मेरे को ये करना है. इसीलिए फॉर मी टू लूज अबाउट 92 kilos to 59 वॉज ईजी, बिकॉज ये वो एक मोटिवेशन था मेरे लिए कि मुझे जाना है और मुझे कुछ करके दिखाना है. इसीलिए इट वॉज ईजियर फॉर मी. थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. हमारे साथ इस वक्त उरूशा इस्लाम जी भी हैं जो कि स्टाइल कॉन्टोर ट्रंक शो की चेयरमैन ओनर है. लास्ट टाइम भी हम लोगों ने उरूशा जी के साथ बात किया था, इस बार भी बात करेंगे. मैम आपको कैसा लगता है इस तरीके का प्रोग्राम करके? जी मुझे हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हमेशा से लाइक आकांक्षा सेड आई वाज ऑलवेज इनटू फैशन एंड मैं हमेशा इसी फील्ड में कुछ करना चाहती थी. फिर जब मैं इन लोगों से मिली, इनके कॉन्सेप्ट और आइडियाज़, इनके हर एक जहाँ पर ये अभी स्टॉल ओनर्स या स्टॉल होल्डर्स या ब्रांड ओनर्स जो मैं इनको बोलती हूँ, ब्रांड ओनर्स, इनका एक अलग ही टाइप का एक आइडेंटिटी है. आपको अगर जो कपड़े एक स्टॉल में मिलेंगे दूसरे में आपको सेम नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो लोग खुद का एक माइंड और एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं अपने डिज़ाइंस में, अपने प्रोडक्ट चूज़ करने में एंड अपने आप को, अपने ब्रांड को एक लेआउट देने में. तो मैं हमेशा से ही बहुत ज़्यादा इस तरफ इंक्लाइन थी एंड नाउ मेकिंग इट इनटू माय प्रोफेशन आई फील दैट दिस इज़ नथिंग लाइक इट. मैम आपको ऐसा कब लगा कि इस तरीके का एग्जीबिशंस क्रिएट करना चाहिए लोगों को, और अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट्स में जो लोग हैं डिफरेंट जिनके अंदर में टैलेंट है उनको निकाल कर सामने लाना चाहिए? आपको ये ऐसा कब फील हुआ? ऐसा मैं अब तो अभी मैं 2.5 years से एग्जीबिशन कर रही हूँ और मैं करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, बट मुझे इंस्पिरेशन इस तरीके से आया कि एग्जीबिशंस तो काफ़ी सारे हो रहे थे और हम अटेंड भी कर रहे थे, बट द फैक्ट दैट कि अलग अलग वैरायटीज़ को एक रूफ के अंडर लाना और उनको प्रेजेंट करना, और मुझे लगा कि मैं अपना बहुत क्रिएटिविटी इसमें डाल सकती हूँ. जो मैंने पढ़ाई की है पब्लिक रिलेशंस, मीडिया, जर्नलिज्म, मैं आप लोग के बैकग्राउंड से ही हूँ. तो बट फैशन का इंक्लिनेशन ज़्यादा तरफ था, तो ये एग्जीबिशन करते करते मैं उसमें अपना पब्लिक रिलेशन और मार्केटिंग का भी आइडियाज़ लगा सकती हूँ, और फैशन जो कांस्टेंट है मेरे साथ उसको भी मैं लेकर चल सकती हूँ. उरूशा जी मुझे एक बात बताइए कि ज़्यादातर जो देखने को मिलता था इस तरीके का जो एग्जीबिशंस है वो बड़े जगह पर होता था, अच्छे प्लेटफॉर्म पर होता था, लाइक आइस स्केटिंग रिंग, सिटी सेंटर मॉल. लोकल एरियाज में जो आपने लाने की कोशिश की है, इसके पीछे क्या मकसद है और क्या चाहती थी आप लोग? हम लोग एरिया में इसलिए करना चाहते थे बिकॉज यहाँ पर भी वैसे स्पेंडिंग कैपेसिटी है, वैसे लोगों का चॉइस है, और लोग यहाँ पर आज हर चीज़ें देखते हैं और पसंद करते हैं. ट्रेंड चेंज हो रहा है लोगों का. सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ बन गई ना, जब मैं भी प्रोफेशन में आने लगी तो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत था. अब सोशल मीडिया आप एक अमेरिका का कंट्री काउंट भी आप इंडिया में देख सकते हैं, उससे काफ़ी कल्चरल चेंजेस हुए, बहुत लोग इन्फ्लुएंस हुए और लोगों को अब ट्रेंड्स, स्टाइल्स ये सब समझ में आने लगा, और स्पेंडिंग कैपेसिटी तो थी वो बढ़ती गई. इनफैक्ट
ओवर द टाइम। तो नाउ अब ये एरिया में करके हमें ये भी समझ आता है कि उन लोग को परचेसिंग पावर भी है और उन लोग को स्टाइल और ये सब चीज़ समझने की नॉलेज भी है और ख़रीदते भी है लोग और पहनते भी हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ों को। मैम एक पर्सनल सवाल है, ये है कि ख़ास तौर पर मुस्लिम्स कम्युनिटी में एक स्टीरियोटाइप इमेज बना रहता है, ख़ास तौर पर लड़कियों को लेकर के, कि लड़कियां घर पर बुर्का नकाब के अंदर ही रहती है, वो कुछ कर नहीं सकती। आप खुद एक मुस्लिम्स कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तो आपको क्या इस तरीके का कभी कोई जो रुकावट हुआ या इस तरीके का काम कम्युनिटी के जो स्कॉलर्स है उनके तरफ से कुछ ऐसा, जो लोग फतवा वगैरह कहते हैं, ऐसा कुछ आप लोगों को झेलना पड़ा? जी नहीं, सी अ लॉट ऑफ थिंग दैट गोज इन इज आपके पेरेंट्स आपको क्या अपब्रिंगिंग देते हैं। तो हम इस माहौल में बड़े हुए थे जब एक टाइम था कि औरतें हमारे घर पे भी बुर्का नकाब और ये सब, बट जैसे टाइम चेंज होने लगा और हमारे माशाल्लाह से हम लोग 5 बहनें हैं, बट हमें कभी भी ऐसा फील नहीं किया गया कि तुम लड़की हो तो तुम बाहर नहीं जा सकती हो। हर घर का माहौल काफ़ी डिफरेंट होता है। हम मुस्लिम भी बहुत नॉर्मल पीपल हैं। जैसे बाहर बहुत ज़्यादा स्कैंडलाइज कर दिया जाता है कि मुस्लिम बहुत डिफरेंट है, वो लोग ऑप्रेस करते हैं। आज जो लड़कियां नकाब पहन रही हैं, आप जाकर देखिए, उनसे पूछिए, वो अपने बिलीफ से पहन रही हैं, उनको कोई फोर्स करके या कोई गन पॉइंट पे नहीं पहना रहा है। वैसे ही अगर मुझे जो पहनना है, जो चीज़ें अच्छी लगती है, तो मुझे भी फुल फ्रीडम मिलना उस चीज़ के लिए। लाइफ में कुछ करना है, जाके अचीव करना है, एक लड़के से कंधे से कंधे मिलाकर चलना है। मेरे घर में हमें वैसा तरबियत और वैसे अपब्रिंगिंग दिया गया कि आज हम यहाँ खड़े हैं और गर्व से हमारे फादर प्राउड होते हैं हमारे ऊपर कि हमारी चारों बहनें कुछ ना कुछ कर रही हैं, अपना एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपने करियर में बहुत फ्लरिश कर रही हैं। और आज ये देखा भी जा रहा है कि जो लड़के जो शादी के लिए जो पहले सोचते थे कि अच्छा शादी नहीं होगी, आज उनको वर्किंग वुमेन चाहिए। आज वो उनको ऐसा चाहिए कि वो मेरा सपोर्ट कर सके। आज उनको ऐसा चाहिए कि वो प्रेजेंटेबल रह सके। आजकल लोगों, अब लड़कियों का जमाने के साथ लोगों लड़के का भी माइंडसेट चेंज हो गया है। वो चाह रहे कि मेरी बेटी बड़ी होके पायलट बने, इंजीनियर बने। क्यों बेटी है तो क्या हुआ? क्योंकि वो डिफरेंस स्लोली खत्म हो रहा है। एंड अ लॉट ऑफ इट सोशल मीडिया का भी मैं बोलूँगी कि इन्फ्लुएंस है। और माइंडसेट अगर अब और हर फैमिली का एक अलग थिंकिंग है। कल को अगर वो बोल रहे हैं अगर हिजाब डालो किसी को, तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं, वो अपनी थिंकिंग के हिसाब से सही बोल रहे हैं। बट हर एक एस्पेक्ट को आपको समझना होता है। हर फैमिली डिफरेंट होती है और आजकल तो काफ़ी चेंजेस आ गया है और हम लोग इस तरक्की के ऊपर ही बढ़ रहे हैं। मैम, आज की यंग जनरेशन के लिए लास्ट क्वेश्चन, आज की यंग जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज, क्योंकि आप खुद यूथ हैं और ख़ास तौर पर वुमेन्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़े, और क्या आप अपने तरीके से आप बताएं क्या बोलना चाहते हैं? कैसे आगे बढ़े, मैं ये सोचती हूँ कि आप हमेशा से ये सोचें कि आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है। आप अपना लाइफ का एम शादी या बच्चे तक मत रखें। अगर आपका ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको शादी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट हैपन्स एंड इट विल हैपन एट टाइम। वो ज़रूरी नहीं है कि वो हो गया तो वो ख़त्म मेरी ज़िंदगी। उसके बाद भी आप अपने एम्बिशन को चेस करना मत रोकें। मेरा बस ये रहेगा कि आप जो बचपन से चाहते थे कि हाँ बड़े होकर ये बनेंगे, तो उसको बड़े होते होते दबा नहीं दें। लाइफ को हमेशा एम्बिशन को चेस करते रहे और हमेशा एक नया गोल सेट करें अपने लाइफ के लिए। तो उससे आप कभी भी ये नहीं फील करेंगे कि हाँ मेरी मिड लाइफ क्राइसिस चल रही है। आप हमेशा डेफिनेटली एक गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे और उस चीज़ को अचीव डेफिनेटली करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी उरूसा इस्लाम, जो कि स्टाइल काउंटर ट्रंक शो की ओनर है, और हमारे साथ इस वक्त मिसेस वर्ल्ड वाइड ईस्ट जो थी आकांक्षा मंगलानी जी, वो भी थी। इनका कहना ये है आज के तमाम यूथ को कि आपको लाइफ में कई सारे रुकावटें, कई सारी चीज़ें आएंगी। इट्स अ पार्ट ऑफ ए लाइफ। आप तमाम रुकावटों, तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए भी आपका जो एम्बिशन है, आप किसी चीज़ के लिए आपका जो गोल है, उन तमाम गोल के पीछे आप मेहनत करें, कोशिश करें, कामयाबी ज़रूर आपके साथ आएगी। आप देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। फर्दर अपडेट्स के लिए मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।